Hello everyone. As you know that I'm doing Indian Polity by M. Lakshmikant, and I'm doing chapter 3, and this is nothing but is the part 3 of this chapter 3. There will be many parts because this chapter is very big. What is chapter 3 is salient features of Constitution. Okay, so this is the part 3. If you have not watched the previous parts, please watch those as well. This is what myself. So let's see this part 3 of chapter 3. Okay. So the seventh salient feature of this Indian Constitution is nothing but integrated and independent judiciary. Okay. So we'll see what is given here. The Indian Constitution establishes a judicial system that is integrated as well as independent. देखिए, what is meaning of that? अब जैसे आप देखते हो कि हम इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट है, बट कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपने तरीके से करते हैं काम, हाई कोर्ट है वो अपने तरीके से काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट है वो अपने तरीके से काम करते हैं. लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं कोई बंदा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार जाता है, देन ही कैन गो टू हाई कोर्ट. ठीक है, वहाँ पे भी अगर हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है. ठीक है, जा सकता है, वो उसके ऊपर है. वहाँ पे जीतेगा तो वो फाइनल हो जाएगा, और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि उसी चीज़ को फिर दोनों कोर्ट को फॉलो करना है. ओके, सो दैट्स वाई our judicial system, okay, Indian judiciary is integrated and independent. Okay, वो independently भी काम कर रहे हैं but they're integrated as well. Okay, I've just given the small example of that, but there is lot more examples we'll see when we'll do judiciary chapter itself. Next, the Supreme Court stand at top. वही चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, सेम चीज़ ही होगी यहाँ पे. Supreme Court stand at the top of the integrated judicial system in the country. Below it, obviously, there are high courts at the state level. Under high court, there is hierarchy of subordinate courts, that is district court and other lower courts. Okay, and obviously these courts are like, these lower courts and subordinate courts and district court, these will be actually comes under high court, obviously. Okay, that's why they are integrated. But जैसे होता है ना कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए केस, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो. ठीक है. Next, this single system of courts enforce both the central law as well as the state law. Unlike in USA, where the federal law are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. ठीक है, जैसे हमारा इंडिया में क्या है, the court enforce both central laws as well as state laws. हमारे इंडिया में ऐसा, बट यूएसए में क्या है कि जो फेडरल कोर्ट है, मतलब जो उनका मतलब जो फेडरल कोर्ट है, जैसे मान लेते हैं कि सेंटर है, सेंटर में जो उनका जुडिशरी है, वो जो लॉ पास करेगा वो पूरे सेंटर पे, मतलब लॉ, आई विल नॉट से लॉ, मतलब जो जजमेंट देगा वो पूरे फेडरल में अप्लीकेबल होगा. अब आपको पता है यूएसए में हर स्टेट का अपना अपना कोर्ट है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. तो जैसे मान लो कैलिफोर्निया स्टेट है, उसने उसका खुद का जुडिशियल सिस्टम है, तो उसने अगर कोई लॉ इन्फोर्स किया, ठीक है, तो वो आई विल नॉट से लॉ, either you can say law or you can say the judgment, whatever it is, that will be applicable only at that particular state. That is not going to applicable in the Texas. That is not going to applicable in Nevada. Okay, so something like that. So that's why in USA is different. Okay, what we have in India. Next, the Supreme Court is a federal court, the highest court of appeal. Obviously सबको पता है, the guarantor of the fundamental right. Okay, अब देखिए ऐसा क्यों है, बताता हूँ मैं. फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए
जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो गार्जियन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है। क्यों? जैसे जो आर्टिकल 32 है विच इज राइट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो उसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, ऑफ सिटीजन ऑब्वियसली, ठीक है, सिटीजन का ही राइट वायलेट होगा ना। दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस to ensure its independence, security of tenure of judges, obviously, fixed service condition for judges, all the expenses of Supreme Courts, charge on the Consolidated Fund of India, provision on discussion on the conduct of judges in the legislature, ban on practice after retirement, power to punish of its contempt vested in the Supreme Court, separation of judiciary and फ्रॉम एक्सिक्यूटिव एंड सो ऑन। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, जो हमारा इंश्योर जो हमारा जुडिशरी है उसको एकदम अलग बॉडी बना के रखा है। वो ऐसा क्यों? वो एकदम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर है। ओके, क्यों, कैसे है? जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका एक टेन्योर होता है, ठीक है, उनकी फिक्स्ड सैलरी होती है ना, और वो उनको एग्जीक्यूटिव से पूरा अलग रखा गया है। उनको जो सैलरी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। ओके, वो कोई गवर्नमेंट नहीं देती है। और फिर वो रिटायर होने के बाद जैसे वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उससे क्या होगा कि अगर मान लो कि वो, अगर उनको ऐसा लगेगा कि रिटायर होने के बाद उनको फिर से कोई XYZ गवर्नमेंट है तो उनके फेवर में उन्होंने कोई जजमेंट दिया, तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो आई विल गेट सम पोस्ट। तो वो सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इस वजह से आफ्टर रिटायरमेंट दे कांट प्रैक्टिस अगेन, ठीक है। हाँ, बट जैसे प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ठीक है आप जजेस की कमी है तो वो उनको कुछ दिनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, ठीक है। और वो जुडिशरी वाले में हम लोग देखेंगे, ओके, एडहॉक जजेस वगैरह आएगा। So these things is there. Okay, you just read this text twice, you will come to know. Okay. Next, fundamental right. और another feature क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट्स। कहाँ पे दिया हुआ? पार्ट 3 में दिया हुआ है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन। 6 तरीके के फंडामेंटल राइट है जो हमारे सिटीजन्स को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वालिटी, विच इज़ फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, विच इज़ आर्टिकल 19 to 22, एंड देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विच इज़ आर्टिकल 23 to 24, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, विच इज़ आर्टिकल 25 to 28, देन cultural and educational rights, which comes under article 29 to 30, and last one is right to constitutional remedies, article 32। ओके, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। अगर ये सारे, ये पांचों अगर आपके वायलेट होते हैं A to E, तो ये छठा बोलता है यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, दैट्स वाई इस आर्टिकल को अम्बेडकर जी ने बोला है कि इट इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, so you can remember this, right to constitutional remedies, article 32। okay, अब देखिए फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर meant for promoting the idea of political democracy. They operate as limitation on the term of executive and आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। अब देखिए जैसे मान लेते हैं फंडामेंटल राइट नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो भी गवर्नमेंट आती, कोई भी लॉ बनाती और रूल करती, कुछ भी करती, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इस चीज़ को लाया गया कि हाँ, अगर कोई लॉ बनाते हैं उससे सिटीज़न को प्रॉब्लम हो रहा है या उनकी राइट्स को वायलेट किया जा रहा है,
ठीक है। तो इस वजह से फंडामेंटल राइट को डाला गया, क्योंकि देखिए जब अंग्रेज़ थे तो वो सब इतना ज़्यादा फंडामेंटल राइट को वायलेट किए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कभी किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, मार दिया, कुछ भी लॉ बना दिया। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें हमारे लोगों ने देखा था। ठीक है, एनीवे ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं आती कि वो ऐसा करती, लेकिन ठीक है, मान लो कोई ऐसा डिक्टेटर टाइप का कोई आ ही गया, तो आप क्या करोगे? तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने देखा कि यूएसए में भी ऐसा था, यूएसए में फंडामेंटल राइट आया, तो यूएसए से ही फंडामेंटल राइट लिया गया है। तो इस वजह से फंडामेंटल राइट लाया गया ताकि जो चीज़ें अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ था उस टाइप का कोई चीज़ दोबारा से ना हो। ओके, देन दे आर justiciable in nature. What is that is they are enforceable by the court of their violation. मैं बोल दिया ना आर्टिकल 32, जब भी इट इज़ जस्टिसेबल, जब भी वो वायलेट होगा it is enforceable by court of law. Okay, so as per article 32 on Supreme Court and article 226 by High Court, you can go to these courts and for enforceable for for enforceable of your fundamental rights, the right which is violated. Okay, see देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट कभी कभी बोल देता हूँ, तो यू जस्ट पिक माई वर्ड, क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, अगर मैं गलत बोलूँगा तो मैं उसको करेक्ट भी करूँगा। ठीक है, बट यू लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, नेक्स्ट, द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू the writs of habeas corpus, mandamus, provision, certiorari and quo warranto as the restoration of his rights. देखिए अब जैसे मान लो कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, कोई भी है, उसने कुछ ऐसा किया जिससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, तो आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट वो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए दे विल as based on the nature of the violation of fundamental right, they will issue the writs. Okay, what are these writs? Anyway, we'll see later this in a very elaborated way, but here यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं। बस कहने का मतलब ये कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट क्या करती है, जब आप कोर्ट में जाते हो तो वो जिस अथॉरिटी, ऑब्वियसली कोई अथॉरिटी ने वायलेट किया होगा। ठीक है, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन है गवर्नमेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस है, आईपीएस है, या पुलिस है, कोई भी है। ठीक है, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई और हायर पोस्ट पे है, तो अगर आपको लगता है कि आपका वायलेट हुआ है, आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या करेगा? वो रिट इशू करेगा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। किस फॉर्म में? हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्सोरी एंड को वारंटो, ये 5 तरीके के रिट्स होते हैं जो कोर्ट इशू करती है। उसके बाद वो बंदा या वो इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट दे हैज़ टू प्रेजेंट इन द कोर्ट, एंड फिर जो भी फॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो सब चलता है, और देन इफ़ यू आर करेक्ट देन योर फंडामेंटल राइट विल बी इनफोर्स। ओके, सो दिस इज द थिंग। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से वायलेट होता है तो आप जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट उस आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को जैसा आपका जिस तरीके का वायलेशन रहेगा, और वो इसमें जिस भी फॉर्म में आता है, वेदर इट इज़ हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्सोरी, को वारंटो, ये वाला रिट इशू करेगा, और फिर उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। फिर उसके बाद फॉर्मल प्रोसीजर कोर्ट का चलेगा, फिर आपका अगर आप सही हो तो जो आपके फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्स कर दिए जाएंगे। ओके, अब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो कई केसेस आते रहते हैं। ओके, एक हादिया जहान केस था, आप यू जस्ट गूगल इट एंड प्लीज़ रीड दैट। ओके, वहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था। ओके, next, however, the fundamental rights are not absolute and subject to a reasonable restriction. Further, they are not sacrosanct and can be curtailed or
रिपील्ड बाई पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए अब ये सब थोड़ा सा है कि ऐसा नहीं कि इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट कुछ सर्टेन रीज़न होना चाहिए, जैसे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, बट कम्प्लीटली नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ को रिपील कर सकते हैं, सारे को नहीं। ठीक है, बस वो भी कुछ समय के लिए, इमरजेंसी के टाइम में, ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी है या फिर इमरजेंसी है वॉर के केस में, ऐसा कुछ कुछ होता है थोड़ा सा। विल सी इन डिटेल वंस विल डील द फंडामेंटल राइट चैप्टर। पूरा चैप्टर ही काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें 10-15 पार्ट बनेंगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर दैट। दे कैन ऑल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, पहले ही मैं बोल दिया, एक्सेप्ट राइट गारंटी बाई आर्टिकल 20 एंड 21। देखिए यहाँ पे आ गया आर्टिकल 21। ओके, क्योंकि मैं अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे 21, क्योंकि मैं आर्टिकल्स की भी सीरीज़ कर रहा हूँ। तो एक वीडियो में एक आर्टिकल है, तो वहाँ पे मैंने ये बात बोली थी कि दिस आर्टिकल 20 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ सब पार्ट्स लाइक 30-40 सब पार्ट्स एंड दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। So it's nothing but right to life and personal liberty. So इस अभी हम लोगों ने देखा ना, इससे पहले 6 आर्टिकल्स देखे हैं, तो इन दोनों को छोड़ के हाँ नेशनल इमरजेंसी के टाइम में थोड़े समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ओके, बट लेकिन ये दोनों तो रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी होता है। नौवा जो है इट इज़ DPSP, आयरलैंड से लिया गया, आपको पता है। सो विल सी व्हाट इज़ गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर इनॉमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में DPSP है। इसको DPSP भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी तेज होंगे, पहले से पढ़े होंगे, उन्हें सब पता होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। ओके, तो उनके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, फिर उसका पूरा क्या है, वो सब भी मैं बोलता जाता हूँ, सो दैट दे कैन ऑल्सो, मतलब आज से उन्हें भी पता चल रहा है। ठीक है, कि उन्हें ना लगे कि DPSP क्या बोल दिया सर ने, ऐसा नहीं। ओके, सो DPSP इज नथिंग बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। So according to Dr. B.R. Ambedkar, the directive principle of state policy is a novel feature. Obviously, ठीक है, इसको इसमें क्या मैं आपको बताऊँ। ठीक है, they are enumerated in part 4 of the Constitution. They can be classified into 3 broad categories: socialistic, Gandhian, and liberal intellectual. The directive principles are meant to promoting the idea of social and economic democracy. They seek to इस्टेब्लिश वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये क्यों इसको डाला गया, वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए। जैसे आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट के काफ़ी ढेर सारी पॉलिसीज़ आती हैं जो कि स्पेशली फॉर BPL फैमिलीज होती हैं। वो क्यों होती है, दिस इज़ ड्यू टू DPSP, क्योंकि वेलफेयर स्टेट, हमें जो हमारे गरीब लोग हैं उनको देखना, उनको ध्यान देना। जो पैसे वाले हैं, मिडिल क्लास है, उनको कोई बात नहीं, बट जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, we have to take care of them. So that's why this DPSP is very very important. However, like the fundamental rights, the directive principles are non-justiciable in nature. That is, they are not enforceable by court of their violation. अब देखिए फंडामेंटल राइट में क्या होता था, फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो हम कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स करा लेंगे, बट DPSP के साथ ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके नहीं आती है BPL के लिए, तो BPL फैमिली कोर्ट में जाके ऐसा नहीं बोलेगा कि हम ड्यू टू माई DPSP इज़ वायलेटेड, प्लीज़ इन्फोर्स दैट। नो, दिस कैन नॉट बी। सो इसको, दिस इज़ नॉट अ इन्फोर्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, येट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, इवन दो दिस इज़ नॉट फंडामेंटल, बट गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बना रही है तो उनको इस तरीके से बनाना है कि इट हैज़ टू बी वेलफेयर ऑफ स्टेट। जो हमारे गरीब लोग हैं उनको अच्छे से देखना है। ओके,
and hence they impose a moral obligation of state authorities for their application. ठीक है, but real force sanction behind them is political, that is public opinion. Fine, कुछ इसमें बताने वाला नहीं है भाई. इन मिनरवा मिल केस हुआ था, मिनरवा मिल केस, उसमें 1980 में उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन bedrock of balance between the fundamental right and डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ओके, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड टू बी अ बेड रॉक. ओके, लाइक बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ओके, सो दैट वाज टिल द DPSP. 10th इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो दिस वाज नॉट गिवन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था. बट उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ. ओके, we'll read first, then I will explain you. The original constitution did not provide the fundamental duties of the citizens. These were added during the operation of internal emergency 1975 to 77 by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on recommendation of Swanson Committee. देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ये नहीं था, बट आपको पता 2 साल की इमरजेंसी लगी थी. वहाँ पे 42nd अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था. किसके रिकमेंडेशन से? स्वानसन कमेटी के रिकमेंडेशन से लाया गया था और इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. फिर आर्टिकल 51A. ओके, वही चीज़ मैंने पहले आपको बता दिया. 86th Constitutional Amendment Act of 2002 added one more fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट है पूरी 10 से 11 आई थी. आई डोंट रिमेंबर द नंबर, 10 से 11 है. वो लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है. सो जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरी लिस्ट दी रहेगी, वो विल सी इन डिटेल. ओके, यहाँ पे बस आप जान लो क्या होता है. द पार्ट 4A, पार्ट 4A ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल विच इज़ 51A. ठीक है, पार्ट 4 था, उसके बाद पार्ट 4A बना दिया गया फिर, और ये आर्टिकल ऐड किया गया विच इज़ नथिंग बट इज द फंडामेंटल ड्यूटी. स्पेसिफाई द देखिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, 11 10 से 11 में बोल रहा था. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट of common brotherhood against all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture and so on. देखिए, इसमें कुछ के नाम इसमें दे दिया है. ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटीज़. अब जैसे आप देखते हैं हम लोग नेशनल एंथम होता है, कहीं भी अगर हमारे कान में चला जाए तो वी हैव टू स्टैंड. ठीक है, दिस इज़ आवर ड्यूटी. अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको पुलिस जेल में बंद कर देगी, बट यू हैव टू डू दैट. दिस इज योर ड्यूटी. ठीक है, नेशनल फ्लैग आप देख रहे हो तो यू हैव टू सल्यूट. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप सल्यूट करो ही. ठीक है, बट दिस इज़ योर ड्यूटी. हमें हमारे अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना. जैसे मान लो आप बाहर में जा रहे हो, अपने कंट्री के बारे में उल्टा पुल्टा बोले, दैट इज़ नॉट द थिंग. ओके, यू हैव टू टेल गुड थिंग अबाउट योर कंट्री. ओके, सो समथिंग लाइक ब्रदरहुड, मतलब हम आप एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिलेशन रखना चाहिए. ये नहीं कि सबसे लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो ये सब मतलब ड्यूटीज़ के बारे में बता. ये इस वजह से ऐड किया गया था कि मतलब जब उससे पहले जब ये हुआ था इमरजेंसी, तो उनको आई थिंक इंदिरा गांधी उस टाइम पे थी, नॉट आई थिंक इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. मे भी हो सकता है कि जब नेशनल एंथम चलता होगा तो लोग नहीं खड़े होते होंगे, चलते रहते होंगे, तो शी माइट फील दैट वी शुड ब्रिंग दिस. ओके, तो इस वजह से ये सब सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 51A को लाया गया था. द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज रिमाइंडर टू द सिटीजन दैट while enjoying their rights, okay, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, they have also to be quite conscious of duty they owe to their country. ठीक है, आप फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, लेकिन आप हर सिटीज़न को उसको ड्यूटी भी तो पता होना चाहिए.
जिस तरीके से उसको राइट चाहिए उसी तरीके से उसको ड्यूटी भी फॉलो करना है। ओके, their society and their fellow citizen obviously. However, like the directive principle, the duties are also non-justiciable in nature. अब ऐसा नहीं कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए हैं उसमें कोई वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके उसको जस्टिसेबल करने की कोशिश करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो DPSP की जैसे ये भी नॉन जस्टिसेबल है। ओके, ओनली द फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिसेबल। Okay, so this was the end of this video. I think I have covered some of the very important select feature of Indian Constitution. Next video I will come up with more thing about which is given in this chapter. Thank you.